برطانوی حکومت نے لیسٹر شائر میں کورونا کیسز میں اضافے کے سبب ایک بار پھر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو 2 ہفتوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین عوان۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ملک کے متعدد شہروں میں کورونا وائرس کے کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اس خطرناک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے لیسٹر شائر میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی سیکرٹری صحت کا کہنا ہے کہ لیسٹر میں غیر ضروری دکانوں کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ تعلیمی اداروں کو بھی جمعرات سے بند کر دیا جائے گا۔ It would be very difficult to draw a clear boundary about a city like Leicester where the administrative boundary is pretty much invisible, and it's very difficult to say that, well, we'll put roadblocks up as soon as you get to the fields. It just wouldn't work. But I hope people will understand that these are pretty tough restrictions for the city, but I think the better for that, because more likely to be effective than merely just extending the present situation, more likely to be effective, and therefore more likely for us to come out of the other end more quickly. ان کا مزید کہنا تھا کہ لیسٹر شائر میں 650 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہونے پر یہ فیصلہ کیا گیا، لہٰذا عوام انتہائی مجبوری کے علاوہ باہر نہ نکلیں۔ لیسٹر شائر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد برطانیہ کا 10% ہے۔ علاقے میں اب تک سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 3216 ہے، جن میں عام شہریوں کے علاوہ طبی عملے کے ارکان بھی شامل ہیں۔ میئر پیٹر سولیسبے کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس مرتبہ پہلے نافذ شدہ لاک ڈاؤن سے بھی زیادہ سخت پابندیاں لگائی ہیں، کیونکہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے سبب یہ ناگزیر ہیں۔ کورونا سے متاثرہ معیشت اور سماجی ڈھانچے کو بحال کرنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن میدان میں آ گئے۔ انہوں نے قوم کو تعمیر نو کا نعرہ دے کر کورونا کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام دیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں غلام حسین عوان کی اس رپورٹ۔ علاقے ڈیڈلے کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم بورس جانسن نے کورونا وائرس کے خلاف قوم کی ہمت بندھائی۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی قوم کورونا کے خلاف کامیابی حاصل کر کے پھر سے صحت یابی کے راستے پر گامزن ہو جائے گی۔ بورس جانسن نے قوم کو تعمیر نو کا نعرہ دیا۔ It also gives us a much greater chance to be radical and to do things differently, to build back better and to build back bolder. And so we will be doubling down on our strategy. We will double down on levelling up, if you can make sense of that. And when I say level up, I don't mean attacking our great companies, or I don't mean impeding the success of London. Far from it, or launching some punitive raid on the wealth creators. I don't believe in tearing people down any more than I believe in tearing down statues that are part of our heritage, let alone a statue of our greatest wartime leader. I believe in building people up, giving everyone growing up in this country the opportunity they need. ویسٹ مڈ لینڈز کے دورے کے موقع پر انہوں نے 5 بلین پاؤنڈ کی خطیر رقم سے شروع ہونے والے اہم منصوبوں کی فاسٹ ٹریکنگ کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان منصوبوں سے برطانیہ پہلے سے بھی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو کر سامنے آئے گا۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے ملک کے کئی حصے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ حکومت اس ملک کی حالت کو بہترین انداز میں تبدیل کرنے کا ویژن رکھتی ہے۔ And in those towns that feel left behind, we have plans to invest in their centres, new academy schools, new green buses, new broadband, and we want to make them places where people have the confidence to stay, to raise their families, to start businesses, and not to feel that all the action is in the cities or in the metropolis. شہریوں کے لیے گھر تعمیر کرنے کے منصوبے پر بھی بورس جانسن نے کھل کر اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ یورپی ممالک کے مقابلے میں گھروں کی تعمیر کے حوالے سے سست روی کا شکار ہے۔ Why are we so slow at building homes by comparison with other European countries? In 2018 we built 2.25 homes per 1,000 people. Germany managed 3.6, Netherlands 3.8, France 6.8. I'll tell you why. Because time is money. And the newt counting delays in our system are a massive drag on the productivity and the prosperity of this country. فضا میں نقصان دہ گیسز کے حوالے سے بورس جانسن کا کہنا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ دنیا کا پہلا زہریلی گیسوں سے پاک ملک بننا ہے۔ And as part of our mission to reach net zero CO2 emissions by 2050, we should set ourselves the goal now
of producing the world's first zero-emission long-haul passenger plane. Jet Zero. Let's do it. And though we're no longer a military superpower, we can be a science superpower. बोरिस जॉनसन ने इस मौके पर तामीराती प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया और वर्कर से गुफ्तगू भी की। उन्होंने तामीराती मशीनरी को चलाकर गड्ढे की खुदाई भी की। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन में नरमी और मालियाती पैकेजेस का ऐलान कर दिया है। 5 बिलियन पाउंड्स के तरक्याती फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में जानिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने हालिया कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले मुआशी बहरान और बेरोजगारी के पेश नज़र तरक्याती मंसूबों पर मबनी 5 बिलियन पाउंड्स की खतीर रकम का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि हम अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने किस कदर मुआशी और मुआशरती मसाइल से दोचार कर दिया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अस्पतालों की तामीर और जदीद आलात की तनसीब के लिए 1.5 बिलियन पाउंड्स, स्कूल्स के लिए 1 बिलियन पाउंड्स के तरक्याती फंड्स रखे और तामीरात, रेलवे और सड़कों के लिए 900 मिलियन पाउंड्स का ऐलान किया। बोरिस जॉनसन का कहना था कि बरतानिया शदीद माली बहरान का शिकार है, कौम को मिलकर इससे निकलना है, लोगों को मजीद घरों में कैद नहीं रख सकते। कोरोना वबा के खतरात के साथ एहतियाती तदाबीर के साथ जिंदगी मामूल पर लानी होगी। हेल्थ साइंसेज के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कोरोना से डेक्सामेथाजोन जिंदगी बचाने की दवा बना दी है, जो बड़ी कामयाबी है। जल्द ही इसके मस्बत नताइज आना शुरू हो जाएंगे और ये दवा और वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब होगी, जिसकी रसाई आम आदमी तक मुमकिन बनाई जाएगी। माली बहरान के पेश नज़र अमरीकी हुकूमत का महकमा इमिग्रेशन के 13,000 मुलाजमीन को छुट्टी पर भेजने का फैसला। छुट्टियों के नोटिस का इतलाक 3 अगस्त से होगा। इमिग्रेशन सर्विसेज में मजमूई तौर पर 20,000 अफराद मुलाजमत करते हैं। इमिग्रेशन सर्विसेज का सालाना बजट $15 अरब है। ये रकम वीज़ों, वर्क परमिट, ग्रीन कार्ड, शहरियत की दरख्वास्तों से आती है। कोरोना वायरस की वजह से दरख्वास्तों में 50% कमी आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत के साथ पाकिस्तान के मौजूदा हालात, कोरोना वायरस के तेज़ी से बढ़ने की वजूहात और उसके नताइज पर ऑनलाइन नशस्त का एहतमाम लंदन में किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी जर्मनी के सदर जाहिद अब्बास शाह और सदर हेम्ब्रिक फरीद शाह ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मिर्ज़ा रोहिल बेग की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में होने वाली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान और बरतानिया के रहनुमा रजा खान ने किया। मीटिंग का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई में रोज बरोज कमर तोड़ इजाफा और कोरोना वायरस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के इकदामात कॉन्फ्रेंस के मौजू थे, जिस पर पार्टी की सीनियर क़यादत ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। बुनियादी तौर पर इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। यूनानी तस्वुर के मुताबिक जो है समाज के माशरे की तश्कील इंसान ने की है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है सोशल एनिमल। अब कोरोना बीमारी में उस सोशल एनिमल के ऊपर पाबंदी लगाई। आप हाथ नहीं मिला सकते, आप बगलगीर नहीं हो सकते, आप एक दूसरे के करीब जो है ब्रीथ नहीं कर सकते। तो दिस इज ए वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना। बहरतौर जैसी सूरत हाल हो उसके मुकाबिल हमें उसे फेस करना चाहिए। क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होती है। मेरी जो कोशिश है वो यही है कि आप आए और इस मुल्क को संभालें और इसको चलाएं और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, खुद बी द ओनर्स। बाहर ले जाने से तो बात नहीं बनेगी पैसे को वापस, उस पैसे को यहीं लगाएं फिर से। यहाँ पर आजिज धामरा जैसा वर्कर जो है काजी मोहम्मद का भांजा, वो भी अभी सेनेटर और पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कृष्णा कुमारी
कोहली है बेचारी, उसको भी सेनेटर बनाया है। यहाँ पर वो लाल दीन है क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनको भी सेनेटर बनाया है। यहाँ पर हमारे पास मौला बख्श चांडियो एक ग्रास रूट का वर्कर, वो भी अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। सिंध तक क्यों महदूद हो गई? पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और सरहद से केपीके से और तमाम मुल्क की जो फेडरेशन की मुल्क की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी थी। जितना जितना डिस्कस करते हैं उतना उतना हम उनको फीडबैक देते हैं, बट ठीक है, जो चीजें हुई हैं हमें इनको अब आगे लेके चलना है, रादर देन के पीछे देखें और फिर क्रिटिसिज्म करें और चीजें करें। हमें चीजों को, सबको, लोगों को, नए हैं पुराने, सबको साथ लेके चलना है। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत और पार्टी के आइंदा के लाहे अमल पर इत्मीनान का इजहार किया गया और कोरोना वायरस से निमटने और उसके खात्मे के लिए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अनथक कोशिशों को सराहा गया। मीटिंग में शिरकत करने वालों में साबिक वफाकी वजीर और इंचार्ज स्टडी सर्कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोफेसर एंडी खान, सीनियर रहनुमा तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर, पीर मजरुल हक सीनियर साबिक सूबाई वजीर तालीम सिंध, सेनेटर यूसुफ बलोच, अजीज मेमन साबिक MNA, औरंगजेब बरकी सीनियर रहनुमा और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, मियां मुनीर हान सदर पीपल्स पार्टी गल्फ रीजन, मोहसिन बारी सदर पीपल्स पार्टी बरतानिया, नईम अराई साबिक सदर PPP जापान, सज्जाद नकवी साबिक सदर पीपल्स पार्टी जर्मनी समेत दीगर रहनुमा शामिल थे। मीटिंग का इख्तिताम पाकिस्तान की सलामती, कोरोना वायरस के खात्मे और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी और दराजी उम्र की दुआ से किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।